Hello, this is the lecture number 5 for the chapter quadrilaterals for the class 9th, and we have done up to question number 10. Now in question number 11, see it very carefully what is given in it. So it is given that there is triangle ABC and DEF like this. See the figure carefully, what is given. It is given that the triangle ABC, this is a triangle ABC and triangle this DEF, in which it is given that AB is equal to DE and AB is parallel to this DE. This is given, and also given that BC is equal to EF and BC is parallel to EF. So this is given. You can join these. See the figure very carefully, and it is given that AB is parallel to DE and AB is equal to DE, and it is also given that BC is parallel to EF and BC is equal to EF. This is given, and you have to show that to prove, you can write from your book that ABED, this is a parallelogram. Then after that you have to prove that BEFC is a parallelogram. Then you have to prove that AD is parallel to EF and AD is equal to CF rather, and then you have to prove that ADFC is a parallelogram, and then you have to prove that AC is equal to DE, and then you have to prove that ABC is congruent to triangle this. So by steps you have to do it. So first of all, what is given? AB is parallel to DE and AB is equal to DE. This is given. Now because this is equal to this and this is parallel to this, so we can say that ABED is a parallelogram. What is the reason for it? You have to write yourself. A quadrilateral is a parallelogram whose one pair of opposite side equal and parallel. A quadrilateral is a parallelogram whose one pair of opposite side equal and parallel. So similarly, BC is parallel to EF and BC is equal to EF. This is also given. So we can write that BEFC is a parallelogram. BCEF, BEFC. BEFC is a parallelogram. Again, a quadrilateral is a parallelogram whose one pair of opposite side equal and parallel. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ये एक parallelogram है. So this side is equal and parallel to this. And हमने ये प्रूव कर दिया, this is a parallelogram, तो this side is equal and parallel to this. So from this we can say that this equal to parallel to this. So what can we write in step number 2, rather 3? AD is parallel to BE and AD is equal to BE, opposite side of the parallelogram. Opposite side of parallelogram, हमने इसको parallelogram प्रूव कर दिया, तो ये इसके equal and parallel. Similarly, हमने इसको parallelogram करा, तो CF is parallel to BE and CF is equal to BE. Same reason. So from 3 and 4 we can say that because this is equal to parallel to this, this is equal to parallel to this, so we can say that AD is parallel to CF and AD is equal to CF from step number 3 and 4. ये तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये इसके इक्वल पैरेलल, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल हो गया. तो नाउ वी कैन से दैट ADFC इज अ पैरेललोग्राम. ADFC इज अ पैरेललोग्राम. ADFC इज अ पैरेललोग्राम. रीजन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि हमने इस दोनों को एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल कर दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. दिस इज अ पैरेललोग्राम. नाउ बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वी कैन से दैट AC
is parallel to DF and AC is equal to DF. Opposite AC is parallel to DF, AC is equal to DF because opposite sides of पैरेललोग्राम. हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है. ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करते तो ये इसके इक्वल एंड पैरेलल. तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल दे ही रखा है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल. तो हमारे पास AC किसके इक्वल आ गया, DF के, हमने प्रूव कर दिया. AB किसके इक्वल है, DE के, ये हमें गिवन है. एंड BC किसके इक्वल है, EF के, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है. तो इन दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई. तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF साइड साइड साइड. हमने ये इसके इक्वल दे रखा था, ये इसके इक्वल गिवन है, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया. तो ऑल साइड ऑफ दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल. तो वी कैन से दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम. हमें गिवन था ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया. ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल. सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल. तो हम इन दोनों स्टेप से व्हाट कैन यू प्रूव दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया. जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल. तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड. So again it is a lengthy question. You can see this lecture 2 to 3 times and do it yourself again 2 to 3 times, then you can do it very well by yourself. So this is the question number 11 of your exercise 8.1. Now in question number 12, again it is a lengthy question. It is ABCD is a trapezium. It is given that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. This is parallel to this is given, and AD is equal to BC. Non-parallel sides equal given है. Then you have to show that angle A is equal to angle B. Given क्या है इसमें? AB is parallel to DC and AD is equal to BC, and then you have to prove many things in which you can note it down from your book. That is angle A is equal to angle B you have to prove, angle C is equal to angle D you have to prove. Then you have to prove that the triangle ABC, that is this triangle, and ABD, they are congruent, and then you have to prove that AC is equal to BD. Now to prove this we have to do some construction here. Now to do some construction, what you have to do, you draw a line parallel to AD meeting BAB produced at E. तो कंस्ट्रक्शन करना है. ड्रॉ CE parallel to AD meeting AB produced. इसको प्रोड्यूस करने पर E पर मीट कर रहा है. सो नाउ AD इज पैरेलल टू CE. बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया. AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है. तो देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम. हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. सी इट वेरी केयरफुली. हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल है, CE के. अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंड AD किसके इक्वल गिवन है, BC के, ये गिवन है. तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब BC किसके इक्वल आ गया, CE के इक्वल आ गया. फ्रॉम स्टेप नंबर आई कैन से 1 and 2. फ्रॉम स्टेप नंबर 1 and 2. So by doing so, I can say that this angle 1 and this angle 2 are equal to each other. Angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite to equal sides. ठीक है. अब
let us say this angle be 3 and this angle be 4. Now see it very carefully. Now angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. लीनियर पेयर हैं ये, इन दोनों एंगल सम 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. इनको एक दूसरे के इक्वल रख लिया क्योंकि इस दोनों का सम 180 डिग्री है. अब इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? 1 और 2 इक्वल हैं, ये कैंसिल हो गए बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए. ये प्रूव हो गया कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ए के. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल सी. तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स. तो क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री हैं तो यहाँ पर भी हम एंगल ए प्लस एंगल डी को एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल लिख सकते हैं. इन दोनों का एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी. कौन कौन से एंगल इक्वल आ गए? एंगल बी और एंगल ए इक्वल है. प्रूव कर दिया ऊपर हमने. सो इसका मतलब एंगल डी किसके इक्वल हो गया? एंगल सी के इक्वल आ गया. ये इसके इक्वल आ गया like this. Now what you have to prove? You have to prove that this triangle are congruent. Now आप इसको congruent prove करिएगा. Now triangle, which two triangle you have to prove that they are congruent? ABC triangle, this, and triangle BAD ये congruent करने हैं आपको. Now I am giving the hint, you have to do yourself. देखना ध्यान से. अब इसमें ये साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल दे रखा है. दे क्या रखा है? हमने प्रूव कर दिया है. वी हैड प्रूव्ड इट दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी बाय साइड एंगल साइड. दोबारा बोल रहा हूँ, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये कॉमन, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव कर दिया है. जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये हमें प्रूव करना था. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द 8.1 एक्सरसाइज, विच इज अगेन समवॉट लेंथी क्वेश्चन. हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी थी पैरेलल ए डी के, और ए बी को ई पर आके मीट करना था. तो जब ये हमने इसके पैरेलल करा है तो ये इसके पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया. अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ए डी बी सी के इक्वल, अपोजिट, ये तो गिवन है इक्वल, और ए डी किसके इक्वल? सी. ये भी आपको अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई. तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंड एंगल 1 और एंगल 3, ये एंगल 3 हमने माना था, ये एंगल हमने 3 और ये एंगल हमने 4 माना था. इन दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल जब एक दूसरे के इक्वल रखा तो एंगल 1 एंगल 2 से कैंसिल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया था यहाँ पर. फिर हमने ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी का 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, लाइन पैरेलल है. जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो हमने इन दोनों को भी इक्वल रख लिया, और इसमें एंगल ए एंगल बी के इक्वल था तो कैंसिल हो गया, तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल आ गया. उसके बाद हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, इसलिए ये कॉमन, ये इसके इक्वल, और ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, and we'll start the next exercise and some theorem before that exercise in the next lecture. Thank you.